हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज युवराज शुक्ला। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी के एक चैप्टर से, सॉइल ऑफ इंडिया, और वी कैन से सॉइल रिसोर्सेज। सो कंटेंट टू बी कवर्ड या फिर सिलेबस इन सॉइल रिसोर्सेज इज टाइप्स ऑफ सॉइल्स। नाउ दैट इज like briefly in alluvial soil, black soil, red soil, and laterite soil. Then we have to study their distribution, composition, and characteristics such as texture, color, minerals, crops associated. And then we will move on to soil erosion, its causes, prevention, and conservation. Okay, so what is soil? We're going to be doing classification of Indian soil today. But first, what is soil? What do we mean by soil? So, soil is a thin layer of loose mixture of small rock particles and rotting organic matter that covers the surface of the earth. Okay, क्या होता है soil? So soil is a loose mixture, a mixture of what? Small rock particles and rotting matter. Okay, so it is a loose mixture of small rocks and rock particles and rotting matter that covers the Earth's surface. It supports forests, grasslands, and crops, from which all living creatures on Earth derive their energy. Okay, तो सॉइल का क्या काम रहता है? इट बेसिकली सपोर्ट्स फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉप्स। एंड क्या होता है उसके बाद? all living from which all living creatures on earth derive their energy. Okay, then humus, clay, silica, and sand are the constituents of soil. Chemical and organic change also contribute in the evolution of soil. ठीक है, constituents of soil, in short its composition. So what are the what are the constituents of soil? Humus, clay, silica, and sand. Okay, then chemical and organic change also contribute in the evolution of soil. Temperature, running water, and wind affect the formation of soil. Decomposed plants and animals referred to as humus, which adds to the fertility of the soil. It is derived from a parent rock through a process called breakup method or a wear and tear method. Okay, so हम लोग को soil के बारे में एक brief मिल गया. Still I will give you the points. So first, soil क्या होता है? So soil is a loose mixture of small rock particles and rotting matter that covers the earth's surface. Second, it supports forest, grassland, and crops, from which all living creatures on earth derive their energy. Okay, then humus, clay, silica, and sand are the constituents of soil, and chemical and organic change also contribute in the evolution of soil. Now formation, तो हम लोगों ने now we know the formation, that temperature, running water, and wind affect the formation of the soil. What is the evolution of soil? So these factors, the temperature, running water, and wind affection, that affects the formation of the soil. These factors or these forces of nature, along with the chemical and organic changes that take place in soil, contribute to the evolution of soil. Thus, the soil itself has evolved over millions of years. Okay, so जो formation है soil का, वो कैसे हो रहा है? वो अक्कर कैसे हो रहा है? सॉइल कैसे बन रहा है? टेम्परेचर के वजह से, चेंज इन टेम्परेचर, देन चेंज इन रेनफॉल पैटर्न और रनिंग वाटर. ओके, देन विंड अफेक्शन एंड द केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंज. केमिकल इन द सेंस केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज, organic matter may change. So these all contribute to the formation of soil, and thus itself helps soil to evolve itself over millions of years. Okay, and humus क्या होता है? So as mentioned below, humus होता है like the mixture of decomposed plant and animals. This is humus, which brings fertility to the soil. Okay, fertility of the soil. Now soil fertility refers to the strength of the soil to support plant life. ओके, सॉइल फर्टिलिटी क्या होता है ये हम लोग को याद रखना है. सॉइल फर्टिलिटी रेफर्स टू द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल टू सपोर्ट द प्लांट लाइफ. Fertile soil has the following characteristics. Let me give you the characteristics. Moisture is it has moisture to supply essential nutrients, then has sufficient depth
to enable the plants to grow their roots. Okay, ये points हम लोग को याद रखने हैं, 4 point, that it has soil for has adequate amount of moisture, then to supply the essential nutrients to the plants, then rich in nutrients like nitrogen, potassium and phosphorus, and like sufficient depth. It has sufficient depth. Then it's rich in nutrients, as mentioned, nitrogen, potassium and phosphorus. We will have to remember these 3 nutrients. Next, it contains organic matter that improves the structure of the soil. Okay, so contains organic matter which improves the soil structure, and it is improved by adding fertilizers. Okay, so fertilizers are added to the soil to fertile it. अगर हम लोग कोई ऐसे एरिया में हम लोग को अगर फार्मिंग करनी है या कल्टीवेशन करना है जहाँ पे वो सॉइल ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, ओके, पर उसको हम लोग फर्टाइल बना सकते हैं कैसे? फर्टिलाइजर्स यूज करके. तो उसका सॉइल स्ट्रक्चर कैसे इंप्रूव होता है? या तो ऑर्गेनिक मैटर यूज करके, ओके, जो बहुत सेफ होता है, उसमें कोई केमिकल्स नहीं यूज होते हैं ऑर्गेनिक मैटर में, या फिर बायोगैस में. ओके, बट फर्टिलाइजर्स हम लोग यूज करेंगे तो उसमें केमिकल कॉम्पोज उसका केमिकल रहेंगे उसमें जो एडवर्सली भी इफेक्ट कर सकते हैं. ओके, now we move on to the classification of soil. So first, there are two types of class, soil is classified into two types: residual soil and transported soil. Abhi residual soil matlab kya? Means it is the original soil. Okay, soil formed by breaking up of parent rock and remains in that original place is called residual soil or in situ. Okay. पेरेंट रॉक से जो ब्रेकिंग अप होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ये हम लोगों ने पहले पढ़ा, ये भी हम लोग को याद रखना है, द ब्रेकअप मेथड और द वेयर एंड टेयर मेथड. सो these are the two methods from which the soil is formed. ओके, अपने पेरेंट रॉक से जो सॉइल बनते हैं, जो रेजिडुअल सॉइल बनते हैं, वो ये दो मेथड से बनते हैं. सो हम लोग को ये याद रखना है, ये पॉइंट अंडर रेजिडुअल सॉइल. अभी ट्रांसपोर्टेड सॉइल व्हाट? Soil which is transported by various agents like wind, river is called transported soil. Okay, so transported soil basically मतलब कि जो हम लोग उसकी ओरिजिनल जगह से उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं कोई दूसरी जगह. और हम लोग कौन? हम लोग मतलब हम लोग से आई मेंट बाय एजेंट्स. अब एजेंट्स कैसे? विंड, वाटर. ओके, तो हम लोगों ने जैसे पहले लास्ट स्लाइड में पढ़ा कि टेम्परेचर, वाटर एंड विंड अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. ओके, अभी वो इधर प्रूव हो गया. कैसे ट्रांसपोर्टेड सॉइल कैसे होगा? ट्रांसपोर्टेड सॉइल वो होगा जब उसको एजेंट्स लाइक विंड एंड रिवर या वाटर से वो ट्रांसपोर्ट होगा, अपनी ओरिजिनल प्लेस से कहीं और जाएगा, तो उसको ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलते हैं. अभी रेसिडुअल सॉइल का एग्जांपल क्या है? रेसिडुअल सॉइल का एग्जांपल है ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल. ओके, हम लोग को डेजर्ट सॉइल नहीं पढ़ना है, बट एग्जांपल में डेजर्ट सॉइल भी लिख सकते हैं. एंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल का एग्जांपल क्या है? एल्यूवियल सॉइल. Okay, now we move on to the alluvial soil, the classification of Indian soil. So now we move on to first soil, alluvial soil. Okay, so this is formed by the sediments brought down by rivers. It is rich in chemical ingredients. The river deposits deposit very fine particles of soil called alluvium in their plains during the course of their long journey. The resultant alluvial soil is known as riverine soil because it is mainly found in the river basins. Okay, ये मैंने आपको बताया alluvial soil जो basins में हम लोग को river basins में मिलते हैं. ओके, रिवर बेड में, रिवर बेसिन्स में जो हम लोग को सॉइल मिलता है वो रिवराइन सॉइल बोलते हैं उसको, या फिर एलुवियल सॉइल का मतलब उसका वो होता है, उसको रिवराइन सॉइल बोलते हैं. ओके, अभी जैसे यहाँ पॉइंट दिया, it is formed by sediments brought down by the rivers. It deposits very fine particles
of soil called alluviums during their long journey. It is also known as riverine soil because it is mainly found in the river basin. It is a mixture of silt, clay, and sand called loam. It is deposited by three river system. ये पॉइंट हम लोग को याद रखना है. थ्री रिवर सिस्टम, उधर शॉर्ट फॉर्म दिया है बिग, तो बिग हम लोग को याद रखना है. बिग क्या? ब्रह्मपुत्र, इंडस, गंगा. And then it occupies 40% of the land and is found in the delta of Krishna, Kaveri and Godavari. हम लोग को ये लास्ट के 3 पॉइंट याद रखने बहुत अच्छे से. बिग, ब्रह्मपुत्र, इंडस. देन इट ऑक्यूपाइज ऑफ 40% ऑफ द लैंड, एलुवियल सॉइल. इंडिया में 40% ऑफ द लैंड. एंड कहाँ, कौन से डेल्टा पे मिलता है ये हम लोग को? डेल्टा ऑफ कृष्णा, कावेरी एंड गोदावरी. नाउ वी मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ एलुवियल सॉइल. सो इधर हम लोग को एलुवियल सॉइल के दो टाइप हैं, खादर और भंगर. ओके, तो खादर में क्या है? इट इज फॉर्म्ड ऑफ फाइन सिल्ट एंड क्ले, न्यू एलुवियल सॉइल एंड वेरी फर्टाइल. ओके, तो हम लोग को जैसे यहाँ एलुवियल सॉइल दिख रहा है, तो एलुवियल सॉइल को हम इन लाइट ग्रीन, ये सब एलुवियल सॉइल है. सो इट कवर्स द 40% ऑफ द लैंड. ओके, सो थ्री रिवर्स बिग हम लोग को याद रखना है. इधर आ गया ब्रह्मपुत्र ये साइड पे, देन इधर आ गया इंडस एंड इधर आ गया गंगा. ओके, अभी भंगर सॉइल कैसे? ओल्ड एलुवियल सॉइल है एंड इट हैज लाइम मॉड्यूल्स और वी कैन से स्टोन्स, कंकर्स, एंड इज नॉट वेरी फर्टाइल, क्योंकि उसमें लाइम मॉड्यूल्स हैं, पत्थर है ज्यादा, इसलिए वो ज्यादा फर्टाइल नहीं है. Now, what are the characteristics of alluvial soil? So, in upper coast soil, soil is in large particles and non-uniform, whereas it comes down, it is small and uniform. Okay, तो जो अपर कोस्ट में है, जो इंडस के एरिया में, जो अपर कोस्ट में है, उसमें सॉइल लार्ज पार्टिकल्स में है और उतना यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है. बट जब वो नीचे आता है, व्हेन इट कम्स डाउन, इट इज स्मॉल एंड यूनिफॉर्म. Then it is found in depth of 500 meters, light, porous and fertile. So alluvial soil का ये क्या टेक्सचर बता, हम लोग को इधर टेक्सचर, कलर पता चल रहा है और उसकी फर्टिलिटी कि कैसी फर्टिलिटी है, फर्टाइल है वो. ओके, देन इट इज लाइट इन कलर, देन पोरस. ओके, so alluvial soil is formed by the deposition of river load as it flows from its upper to its lower course. In the upper reaches of the river valleys, the soil is dry, porous and sandy. It consists of clay and organic matter. Soil particles are large and non-uniform. Such soil is predominant in pediment plains. ओके, क्लियर हो गया. तो अपर कोर्स में जो है वो पोरस है, लाइट है एंड नॉन यूनिफॉर्म है. ओके, नाउ दे आर अल्कलाइन इन ड्रायर एरियाज. तो इसका ये कंटेंट, मिनरल कंटेंट बता रहा हूं मैं अभी. तो मिनरल कंटेंट कैसे? सॉइल, एलुवियल सॉइल वेरीज इन नेचर फ्रॉम सैंडी लोम टू क्ले. ओके, तो ये भी हम लोग को याद रखना है, सैंडी लोम एंड क्ले. लाइट, पोरस, फर्टाइल, सैंडी, लोम एंड क्ले. Okay, it is fertile soil as it is rich in minerals, especially in iron, magnesia, alumina, potash, and lime, but poor in phosphorus, nitrogen, and organic matter. It is deficient in nitrogen and humus, except the alluvium of the Ganga deltaic region, which is rich in humus. In the dry areas, it is more alkaline. Okay, ये सारे पॉइंट्स हम लोग को याद रखने हैं. क्यों? क्योंकि ये उसके मिनरल कॉम्पोजिशन में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में ये हम लोग को क्वेश्चन आएगा, एलुवियल सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स में. ओके, तो इसके हम लोग को 5 कैरेक्टरिस्टिक्स में अभी आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ एकदम वापस, सिंपल समरी, एज अ समरी. कैसे? पहले तो एलुवियल सॉइल का कलर क्या है? ओके, तो लाइट ग्रे टू डीप ब्लैक. ओके, ये उसका कलर है, light gray to deep black, alluvial soil का color. Then it is found in depth of 500 meters. In upper coast, it is not uniform.
Okay, porous in upper course, whereas when it comes down it is small and uniform. 3 पॉइंट हो गया. थर्ड पॉइंट में क्या, थर्ड पॉइंट में हम लोग को लिखना है सुटेबल फॉर राबी एंड खारिफ क्रॉप. तो यहाँ हम लोग क्रॉप कल्टीवेशन के बारे में भी बात कर रहे हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में कि वो राबी एंड खारिफ क्रॉप के लिए बहुत सुटेबल है. ओके, then alkaline in drier areas, rich in iron, magnesia, alumina, potash and lime, but poor in organic matter and नाइट्रोजन, फॉस्फोरस. ओके, तो हम लोग को ये तीन ये सारे पॉइंट्स याद रखने. बट नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ह्यूमस में वो डेफिशिएंट है एलुवियल सॉइल, बट सिर्फ एलुवियल इन अपर गंगा, खाली उसमें हम लोग को ह्यूमस कंटेंट ज्यादा मिलेगा. ओके, एलुवियल सॉइल ऑफ गंगा हैज ह्यूमस, तो उसमें सॉइल कंटेंट ह्यूमस का बहुत रिच है. ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम लोग ने क्लियर कर लिया. नाउ वी मूव ऑन टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलुवियल सॉइल. तो 3 पार्ट में डिवाइडेड एलुवियल सॉइल. इनलैंड एलुवियल पहले फाउंड ऑन द प्लेन्स ऑफ बिग. बिग क्या था? ब्रह्मपुत्र, इंडस, गंगा, एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम पंजाब एंड सिंध, पाकिस्तान, ओके, टू बांग्लादेश एंड आसाम. ये हम लोग को याद रखना है. इट्स वेरी सिंपल. इसको मैंने शॉर्ट वर्ड्स में करके दिया इसलिए इधर. बिग का फुल फॉर्म क्या था? ब्रह्मपुत्र, इंडस, गंगा. सो प्लेन्स ऑफ ब्रह्मपुत्र, इंडस, गंगा, देन एक्सटेंड्स फ्रॉम पंजाब to Sindh. Okay, extends from Punjab and Sindh to Bangladesh and Assam. So west to east वो extend होता है पूरा पाकिस्तान. You can say from Pakistan to Bangladesh and Assam. नेक्स्ट है डेल्टाइक एलुवियल. अभी डेल्टाइक एलुवियल भी मैंने आप लोग को पहले बताया था एलुवियल सॉइल का, कि एलुवियल सॉइल 3 डेल्टास पे मिलेगा हम लोग को, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी. और यहाँ और मेंशन्ड है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, देन गोदावरी, कृष्णा, कावेरी भी है. ओके, ये हम लोग को याद रखना है कि इन डेल्टास पे भी हम लोग को डेल्टाइक एलुवियल सॉइल मिलेगा. देन कोस्टल एलुवियल फाउंड इन द कोस्टल स्ट्रिप्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया. पेनिनसुलर इंडिया हम लोगों ने वो फोटो देखा था एलुवियल सॉइल के क्लासिफिकेशन में. हम लोगों ने फोटो देखा था जिसमें बता रहे थे ओके ईस्टर्न घाट्स पे. तो पेनिनसुलर इंडिया में कोस्टल स्ट्रिप ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, वहां भी एलुवियल सॉइल मिलता है. तो इसके साथ हम लोग का एलुवियल सॉइल हम लोग का हो गया कंप्लीट पूरा. नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल एंड लेटराइट सॉइल. तो हम लोग का क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सॉइल्स कंप्लीट हो जाएगा. एंड फिर उसके बाद हम लोग करेंगे सॉइल इरोजन, इट्स कॉजेस, प्रिवेंशंस एंड कंजर्वेशंस. ओके, सो एक ब्रीफ समरी आज के क्लास के ऊपर, आज के वीडियो के ऊपर. हम लोगों ने किया व्हाट इज सॉइल एंड इट्स क्लासिफिकेशन. तो हम लोगों ने व्हाट इज सॉइल देखा. तो सॉइल क्या होता है? सॉइल एक थिन लेयर होता है ऑफ व्हाट? अ लूज मिक्सचर. Now that loose mixture consists of small rock particles and rotting organic matter. So ये loose mixture बनता है इन दोनों का और ये cover करता है पूरा अर्थ का surface. Okay, and it supports grassland, forest and crops. Okay, इसका chemical composition and organic change, मतलब chemical change and organic change, then temperature, water, running water, wind affection, ये सबसे इसका formation affect होता है. इसका formation and then evolution ये सब affect होता है. ओके, ये self evolved रहता है. ओके, ये हो गया soil का. उसकी fertility पे अभी आते हैं कि उसकी fertility में कैसे ज्यादा वो fertile soil क्या रहता है? बेसिकली स्ट्रेंथ रहता है, सपोर्ट रहता है एक तरह से प्लांट्स के लिए. फर्टाइल सॉइल, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल मतलब स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स. अभी वो फर्टिलिटी हम लोग को कैसे पता चलेगा? फर्टिलिटी बेसिकली मतलब कि इट इज मॉइस्चर बेयरिंग, देन हाई एंड ह्यूमस. ह्यूमस इन द सेंस, ह्यूमस भी मैंने बताया था. ह्यूमस किसका मिक्सचर है? ह्यूमस इज मिक्सचर ऑफ डिकम्पोज प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो डिकम्पोज प्लांट्स एंड एनिमल्स का मिक्सचर है ह्यूमस. सो सॉइल फर्टिलिटी का कैसा रहेगा? जब वो उसका कॉम्पोजिशन हाई रहेगा, न्यूट्रिएंट्स में, मिनरल्स में,
ह्यूमस में, तो जिससे वो प्लांट को स्ट्रेंथ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, तो वो होता है सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी हो गया। अभी आते हैं उसके टाइप्स पे। सॉइल के क्या कौन से टाइप्स होते हैं? रेजिडुअल सॉइल एंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल। रेजिडुअल सॉइल मतलब ओरिजिनल सॉइल, कि हाँ ये इसी जगह पे, यहाँ ये कहीं से और कोई एजेंट्स के थ्रू से नहीं आया है। एंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल कैसे कि एजेंट्स, अभी एजेंट्स कौन से एजेंट्स? दो एजेंट थे हम लोगों ने देखे थे, विंड एंड वाटर। तो इन दोनों से जो सॉइल ट्रांसपोर्ट होता है अपने ओरिजिनल प्लेस से कहीं और आता है, उसको ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या हुआ ट्रांसपोर्टेड सॉइल का? एल्यूवियल सॉइल ट्रांसपोर्टेड सॉइल का एग्जाम्पल है। एंड उसका एग्जाम्पल क्या है? रेजिडुअल सॉइल का ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल, ओके, एंड रेड सॉइल। ये चार उसके एग्जाम्पल हैं। ये हो गया। अभी एल्यूवियल सॉइल क्या होता है? एल्यूवियल सॉइल कैसे बनता है? रिवर बेसिन्स में जो सेडिमेंट्स होते हैं उनसे बनता है, इसलिए उसको रिवराइन बोलते हैं, क्योंकि वो रिवर बेसिन्स में मिलता है। ओके। फिर उसका टेक्सचर कलर कैसा होता है? उसका कलर होता है लाइट ग्रे टू डीप ब्लैक के बीच में। ओके, ये उसका कलर हो गया। उसका टेक्सचर कैसा है? उसका टेक्सचर है पोरस, लाइट, फर्टाइल, क्लेई, सैंडी, लोमी। ओके, ये उसका टेक्सचर है। अभी अपर अपर कोर्स में कैसा है? वो अपर कोर्स में नॉन यूनिफॉर्म है और लार्ज पार्टिकल्स ऑफ रॉक है उसमें। पर जैसे जैसे वो नीचे आता है, वो स्मॉल पार्टिकल्स में टर्न हो जाता है और वो यूनिफॉर्म हो जाता है। ओके। अभी उसका मिनरल कंटेंट क्या है? हाई इन पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशिया, लाइम। ओके, ये उसमें ये हाई है उसमें। और ड्रायर एरियाज में वो अल्कलाइन उसमें हाई रहता है। ओके। और वो पुअर किस में? उसका डेफिशिएंसी उसका क्या है? उसके अंदर क्या चीज का है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ह्यूमस। बट गंगा एरिया में, गंगा प्लेन्स में जो एल्यूवियल सॉइल है वहाँ ह्यूमस कंटेंट ज्यादा है। तो खाली वो जगह छोड़ के बाकी सारे जगह पे एल्यूवियल सॉइल में ह्यूमस की कमी है। ओके। अभी उसके आते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन पे। डिस्ट्रीब्यूशन पे तीन डिस्ट्रीब्यूशन है। इनलैंड है, ओके, इनलैंड है, डेल्टाइक एंड कोस्टल। डेल्टाइक कौन सा? ब्रह्मपुत्र, इंडस, गंगा। ओके। तो वो है इनलैंड में, इन द सेंस मतलब पाकिस्तान टू बांग्लादेश एंड आसाम, और वी कैन से पंजाब एंड सिंध टू बांग्लादेश एंड आसाम। ओके, ये हो गया उसका इनलैंड। अभी उसका आता है डेल्टाइक। डेल्टाइक में पहले तो आएगा ब्रह्मपुत्र, गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा डेल्टा पे, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र डेल्टा पे, देन कृष्णा, कावेरी, गोदावरी पे। ओके, ये भी है। देन कोस्टल पेनिनसुलर इंडिया में ईस्टर्न घाट्स पे रहेगा एलुवियल सॉइल। ओके, तो ये सब टोटल होता है 40% ऑफ द लैंड इन इंडिया। तो एलुवियल सॉइल 40% ऑफ इंडिया कवर करता है। ओके, अब एलुवियल सॉइल के दो टाइप्स थे, खदर सॉइल एंड भंगर सॉइल। खदर सॉइल कैसा था? खदर सॉइल न्यू सॉइल था और फर्टाइल था। ओके, फर्टाइल था। और भंगर सॉइल कैसा था? वो ओल्ड एल्यूवियल सॉइल था और वो फर्टाइल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उसमें लाइम मॉड्यूल्स थे, मतलब कंकर थे, पत्थर थे। ओके, तो इसके साथ हम लोगों ने आज की पूरी वीडियो का समरी भी हो गया हमारा। हम लोग ने एल्यूवियल सॉइल, व्हाट इज सॉइल, सॉइल फर्टिलिटी, रेजिडुअल सॉइल, ट्रांसपोर्टेड सॉइल कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल कवर करेंगे। एंड उसके बाद हम लोग करेंगे soil erosion, उसके causes, preventions and conservations. Okay, do like my video, share and subscribe to my channel. Bye bye, thank you.